Dear students, Assalamu alaikum. During the previous lecture, we learned that the young seagull was calling his parents in a mournful manner, in a very sad manner, asking them to give him something to eat. But they were ignoring him continuously. Now we shall see that a very pleasant change is going to take place in his situation, in his miserable condition. We will see that his mother, we will start it from here, that his mother had packed up a piece of fish. What is the pleasant condition that is going to take place? We will see that his mother had packed up a piece of fish and she was flying across to him with it. He leaned out eagerly. So this is the change that is going to take place in his miserable condition. Now his mother has come up with a very practical plan and she is going to execute it. What is the plan? Let us see it. Now she picks up a piece of fish that was, as we discussed it in the last lecture, that was lying at her feet. She has picked it up and she is flying with this piece of fish towards the young seagull. When the young seagull sees that his mother is flying towards him, he leaned out. Leaned out simply means he inclined forward, or we can say he bent forward in a very eagerly, in a very eager manner. Eager के मीनिंग आपको आने चाहिए. What is eagerly? Very fondly. He wanted to get it somehow. This is eagerly. He wanted to get it somehow, to catch it, to eat it, to get it. This is eagerly, very fondly, बड़ी चाहत से. और इस वक्त वो क्या कर रहा था? He was beating the rock with his feet. He was tapping the rock. वो पहाड़ पर वो पाँव भी मार रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है somehow to get the piece of fish, and that is in the beak of his mother. He was trying to get nearer to her. Now he tries his best to get as near to his mother as he could, as she flew across, when she flew close to him. But when she was, now you will see that his mother is not going to give the piece of fish, so as to provide the piece of fish so easily to him. She wants that he must fly to get his food, to catch his fish for himself. So when she was just opposite to him, when she was very close to him, abreast of him, this is the suitable word. When she was abreast of the ledge, when she was closest to the ledge, in front of him, just opposite to him, in front of him, abreast of the ledge, very close to the ledge, abreast, बिल्कुल आमने सामने. She halted. वो क्या करती है? She halted in the air. वो हवा में रुकती है. Her legs hanging limp. Hanging limp simply means her legs were hanging loosely. Her wings motionless. Now her wings were making no movements. They were quite motionless. Motionless means कोई हरकत नहीं कर रहे थे. The piece of fish in her beak, और उसके मुंह में जो piece of fish है, almost within reach of his beak. So it is almost within reach of the young seagull's beak. लेकिन वो आगे नहीं जा रही. वो इस piece of fish को
उसको आसानी से देने वाली नहीं है, वो चाहती है कि किसी तरह से वो when he will try to catch the fish, she will move upward or to her back in order to get him away from the ledge, ताकि उसको उस लेज से वो गिरा सके, उसको वहाँ से उसे किसी तरह से हटा सकें और वो अपने पैरों को हरकत दें और हवा में उड़ सके. सो द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, तकरीबन उसकी चोंच में पहुंचने वाला था, लेकिन वो उसे खाने के लिए नहीं देती. क्यों नहीं देती? वजह है इसके पीछे. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ी देर के लिए तो वो इंतहाई हैरान होकर इंतज़ार करता है. ही वेटेड अ मोमेंट इन ग्रेट सरप्राइज, ही वॉज very much surprised to see that what might be the reason that his mother is not going to provide him with the fish that is almost within his reach. Wondering, वो हैरान हो रहा था. Wondering here means he was, वो हैरान हो रहा था, वो परेशान था. Why she didn't come nearer, कि वो मज़ीद करीब तर क्यों नहीं आती. What is the reason for not coming nearer to him? And then राइटर कहता है, और फिर क्या हुआ? मैडन बाय हंगर, इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, दैट ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हंगर. ही दिस हंगर इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल. ही डजंट नो व्हाट टू डू टू सेटिस्फाई हिज हंगर. सो मैडन बाय हंगर, फिर भूख ने क्या कर दिया? उसे दीवाना बना दिया. He was no more in his control. He dived at the fish. In order to catch the fish, he dived for it. और कौन सा फिश जो उसकी माँ के चोंच में है, उसे पकड़ने के लिए वो क्या करता है? Dived at the fish. अब फिर क्या होता है? With a loud scream. Now this is the result his mother wanted somehow to get him away from his ledge. अब वो नीचे की तरफ गिरेगा, इसको हम देखेंगे, that he will be falling. Now with a loud scream he fell outwards, वो नीचे की तरफ गिरता है एक ऊंची आवाज़ के साथ. Scream here means cry. With a loud scream, with a loud cry, he fell outwards, वो इस लेज से बाहर की तरफ, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ वो गिरता रहता है, इनटू स्पेस, उस खला में जहाँ पर उसे मज़ीद कुछ भी अवेलेबल नहीं है टू सेट ऑन, जिस पर वो क्या करें? फिर आराम कर सकें या उस पर बैठ सकें. सो द राइटर सेज विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल, फॉल, फेल, फॉलन. फॉल फर्स्ट फॉर्म, फेल, फॉलन, थर्ड फॉर्म. For example, we say the tree had fallen across the road. He fell in love with his books, with his study. So ये fell second form, fallen third form. And so he fell outwards and downwards. वो बाहर की तरफ नीचे गिरने लगा. खला में his mother had swooped upwards. Swooped का वर्ड जो है यहाँ पर इसको याद रखें. शी स्वूप्ड, यहाँ पर अगर इस वर्ड को ड्रॉप करते हैं MCQs में, फिर तुम्हें याद होना चाहिए कि ये क्या है. स्वूप्ड का वर्ड है, बैंक्ड का वर्ड नहीं है, डाइव्ड का वर्ड नहीं है. डिफरेंट ऑप्शन तुम्हें दिए जा सकते हैं. सो हिज मदर स्वूप्ड अपवर्ड्स. स्वूप्ड किसको कहते हैं? क्विक मूवमेंट को कहते हैं. और ये क्विक मूवमेंट जो है ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है और ये नीचे की तरफ भी हो सकती है. उस वक्त स्पेशली ये वर्ड यूज़ करते हैं जब परिंदे अपने पैरों को बंद करके सीधा ऊपर की तरफ चले जाते हैं या नीचे की तरफ गोता लगाते हैं कोई शिकार पकड़ने के लिए. सो हिज मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड्स. शी मेड अ क्विक मूवमेंट टू राइज अप. स्वूप्ड अपवर्ड्स, to make a quick movement to rise up into the air. As he passed beneath her, he heard. अब जाहिर बात है वो ऊपर की तरफ उड़ती है
तो ये नीचे की तरफ गिरता है और क्या होता है, एज ही पास्ट बीनीथ हर, जब वो उसके नीचे गुजरने लगा, ही हेयर्ड, उसने सुना, किस चीज़ को वो सुनता है, द स्विश ऑफ हर विंग्स, स्विश, स्विश किसको कहते हैं, द हिसिंग साउंड, द रसलिंग साउंड, जब परिंदे हवा में से गुजरते हैं, व्हेन दे पास, व्हेन दे फ्लाई थ्रू द एयर, और अ बुलेट पास थ्रू द एयर, तो उस वक्त जो आवाज़ पैदा होती है उसको क्या कहते हैं, स्विश कहते हैं. सो ही कुड हेयर द स्विश ऑफ हर विंग्स, he could hear the hissing sound, the rustling sound of her wings. अब क्या होता है, उसके हालात में तब्दीली आती है. Then a monster terror seized him. monstrous terror, अंडरलाइन करें इसको. Then a lot of terror, खौफ ने उसे क्या कर लिया, घेर लिया. He was under, हम इसको अगर ट्रांसलेट करें in easy सिंपल इंग्लिश, तो हम क्या कहेंगे, मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, ही वॉज अंडर अ लॉट ऑफ टेरर, ही वॉज अंडर एन एक्सट्रीम टेरर, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, इसका क्या मतलब है, हिज हार्ट स्टूड स्टिल, हिज हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग. व्हेन योर हार्ट स्टॉप बीटिंग इट मीन्स यू आर डेड. तो यहाँ पर इसकी ये जो हालत है, ये इंतहाई खौफ की हालत है, टेरर की हालत है, वो एक्सट्रीमली अंडर टेरिफाइंग कंडीशन है. सो हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसकी दिल की धड़कन रुक गई, ये हालत है उसकी. ही कुड हेयर नथिंग, और एक और क्या उसने महसूस किया, दैट ही लॉस्ट हिज पावर ऑफ हेयरिंग, वो न सुन सकता था, दिल की धड़कन रुक गई और सुनने से भी वो कासिर हो गया. लेकिन ये क्या है, इसके बारे में राइटर कहता है एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये खौफ की वजह से, डर की वजह से, टेरर की वजह से. इट लॉस्ट इट ओनली अ मोमेंट, लेकिन ये हालत उसकी रही. लॉस्ट इट ओनली अ मोमेंट मीन्स दिस कंडीशन परसिस्टेड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. देखिए, उसे तो अपने परों पर यकीन नहीं था. ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग. लेकिन अभी अगले ही लम्हे वो क्या करता है, इसी वजह से तो वो नाकाम था कि अपने बारे में इस तरह अपने आप को वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था, अपने विंग्स को वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था. तो अगले लम्हे उसने क्या देखा, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, that they were spreading outwards in the air, and with the help of them he was flying through the air, and he was not falling headlong. उसे ये भी डर था कि मैं सीधा जाकर मुंह के बिल जो है मैं गिरूंगा, कहाँ पर गिरूंगा, मैं सीधा जाकर पानी में गिर जाऊंगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था उसके साथ. हज राइटर कहता है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, they were spreading outwards in the air. The wind rushed against his breast feathers. Rushed against means now the wind was striking violently against his breast feathers. उसके जाति के परों के साथ हवा जो है तेज़ी से टकराती है या तेज़ी से गुजरती है. Then under his stomach, और फिर उसके पेट के साथ ये टकराती है. And against his wings, और ये हवा जो है उसके परों में से भी गुजरती है. जबकि पहले उसको ऐसा यकीन नहीं था कि कभी मैं ऐसा भी कर सकूंगा. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स. देखिए ये क्या है, ये वो एहसासात है सारे जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे कि ऐसा मेरे साथ, ऐसा मैं कभी कर सकूंगा या मेरे साथ ऐसा कभी होगा. वो सब कुछ इसके साथ हो रहा है जैसा कि वो होना चाहिए इसके साथ. और राइटर कहता है, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स. अभी वो महसूस कर सकता था कि उसके परों के जो सिरे थे, they were cutting through the air, they were passing through the air, and he was not feeling any problem while flying through the air. So as I told you,
that his wings were cutting through the air. हवा जो है वो गुजरती है उसके परों में से और वो गिरने वाला नहीं है. He was not falling headlong now. He was not going to fall with his head striking the ground first. Now he could fly through the air without any hesitation. So he was soaring gradually. This is the first sentence. He was soaring gradually. Soaring here means he was flying upward and upward. He was flying upward and upward. Soaring, to fly or rise into the sky is called soaring. Gradually downwards and outwards. आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे और बाहर की तरफ उस लेज से उड़ता जा रहा था. He was no longer afraid. Now he is not hesitant. He is not afraid. He just felt a bit dizzy. Dizzy, you know. He felt a bit giddy. उसका सर थोड़ा सा चकराया. Then he flapped his wings once and soared higher. एक बार फिर वो क्या करता है? He flapped his wings and soared higher. And he was flying higher and higher. Soared upwards means he was flying higher and higher. He uttered a joyous scream and flapped them again. Them here refers to his wings. He produced a very joyful scream, joyful cry, and he gave a movement to his wings. Once again he soared higher और मजीद जो है वो ऊपर चलता गया, ऊपर उड़ता गया. He raised his breast. Now this is the confidence he has gained. The writer says he raised his breast. He raised his breast. This is the symbol of confidence. अभी जो है वो क्या करता है? अपने छाती को बाहर की तरफ निकालता है. And banked against the wind. Banked against the wind simply means he was flying over the air in the sky. और हवा के सहारे वो क्या करता है? वो उड़ने लगा है. और ये आवाज़ें वो निकालता है, ये उसकी वो आवाज़ें हैं जो वो निकालता है. अब यहाँ पर देखें इसकी फैमिली मेम्बर्स जो है, इस पर इन 3 to 4 लाइन्स जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उसकी फैमिली मेम्बर्स जो है क्या करते हैं? वो सेलिब्रेट करते हैं उसकी सक्सेस को. किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? कोई उसके ऊपर से his mother is flying over him, कोई जो है वो beside him, and some of his brother or sister is flying around him. So they are screaming, they are cackling, and their beaks are offering him fish to eat. उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. His mother swooped past him. Swooped तेजी से उसके आगे से गुजरी, उसके ऊपर से वो गुजरती है. Her wings making a loud noise. You can see that she was very happy and her wings were making a very loud noise. He answered her with another scream. अब यंग सीगल जो है यहाँ पर ही यंग सीगल की तरफ इशारा है. He answered him. जब उसने देखा that his mother is flying over him, beside him or across him, he answered her with another scream. तो उसने समझा कि जवाब देना चाहिए, तो उसने जवाब दिया एक और आवाज़ निकाल कर. Then his father flew over him screaming. और फिर उसने देखा that his father was also flying over him and he was also cackling, he was also crying. Then he saw और फिर उसने अपने brother and sister को भी देखा. They were flying around him. Curveting means making joyful movements. Making joyful moments. Banking, हवा के सहारे जो है वो उड़ रहे थे. Banking means हवा के सहारे उड़ना, अपने पैरों को हवा में बगैर मोशन के लूज करके उड़ना, इसको क्या कहते हैं? बैंकिंग. सोरिंग
दे वर फ्लाइंग हायर एंड डाइविंग, और कभी नीचे की तरफ उड़ रहे थे, कभी ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, कभी हवा के सहारे उड़ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? दे वर मेकिंग जॉयफुल मोमेंट्स कर्वेटिंग। तो ये यंग सीगल की सक्सेस को सब जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब राइटर नेक्स्ट पैराग्राफ में लेसन को वाइंड अप कर रहा है, स्टोरी को वाइंड अप कर रहा है, और वो कहता है ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉट। और ये हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि पहले टेरर की वजह से, खौफ की वजह से कोई भी स्टेप उठाने से हम कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन जब एक बार उसको हम अटेम्प्ट करते हैं तो फिर सारी वो जो खौफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। और द सेम इज़ द केस विद द यंग सीगल, ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉट that he had not always been able to fly. Now he completely forgot that he had not always been able to fly. He commenced means he began, he started himself to die. खुद भी वो नीचे की तरफ गोता लगाने लगा, ऊपर की तरफ उड़ने लगा, और वो ये मूवमेंट हरकत करने लगा। And shrieking is equal to screaming, crying shrilly, तेज आवाज़ें निकालने लगा। He was near the sea now. इस वक्त राइटर कहता है कि वो बिल्कुल समंदर के ऊपर उड़ रहा था। वो नीचे गिरते कहाँ पहुँच चुका है? समंदर की सतह तक पहुँच चुका है। और राइटर कहता है कि he was now, वो बिल्कुल समंदर के ऊपर उड़ रहा था, इसके ऊपर सीधा, इसका परवाज़ जो था वो समंदर की जानिब था। और राइटर कहता है ही वॉज नियर द सी नाउ, बिल्कुल समंदर के ऊपर, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल इसके ऊपर उड़ रहा है। और इसकी सेमत जो है, राइटर जो है इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह है? सीधा समंदर की जानिब, वो बाहर की तरफ उड़ने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, समंदर से बाहर की जानब वो सीधा उड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, ये पहली दफ़ा वो ऐसा देखता है कि एक वसी सबज समंदर जो है उसकी नीचे पानी का वो मौजूद है। A very huge body of green water he could see beneath him with little ridges. अब यहाँ पर वो देख रहा है कि जिसके ऊपर क्या चीज़, चोटियाँ जो है वो तैर रही है। चोटियाँ जो है वो रिजेस किन को कहते हैं? लिटल, वो जो पानी की सतह पर हवा की वजह से छोटे छोटे से जो पहाड़ बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं? लिटिल रेजेस मूविंग ओवर इट, हवा की वजह से पानी की सतह पर जो लहरें बन जाती है उनको भी देखा उसने, दैट दे वर मूविंग ओवर इट। ओवर इट हियर रेफर्स टू सी, द ओशन। विद लिटिल रेजेस, चोटियाँ जो है मूविंग ओवर इट, they were present over the surface of the water. He turned his beak sideways and crowed amusedly. Amusedly के मीनिंग तुम्हें आनी चाहिए। amusedly का मतलब है लुत्फ़अंदोज़ होकर, बड़ी खुशी से वो क्या करता है? क्राउड आवाज़ निकालता है। केकल्ड amusedly, खुशी से उसने आवाज़ निकाली। ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, दोनों अतराफ जो है वो अब क्या कर सकता था? ही कुड टर्न हिज बीक टू बोथ साइड्स एंड ही वाज केकलिंग amusedly, हैप्पीली। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके इर्द गिर्द हमने जिस तरह देखा कि उसकी फैमिली मेम्बर जो है दे वर स्क्रीमिंग एंड दे वर प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि विच फिश वाज बीइंग ऑफर्ड बाय हिज फैमिली मेम्बर्स व्हेन ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, सो इट वाज डॉग फिश। एंड देयर बीक्स, they were holding dogfish in their beaks and offering him its pieces.
अब राइटर कहता है ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह वो अपनी उड़ान वो भर चुका था, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। राइटर कहता है कि ये सब कमाल किसको जाता है, ये क्रेडिट ये उसकी माँ को जाता है कि उसने प्लानिंग की और इसको उड़ने में कामयाब बनाया। होप यू विल get some benefit from the video. Try to understand the whole story once again. कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हम MCQs डिस्कस करेंगे और हम ग्रामर का कोई पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह दिस जर्नी विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।